my dear students. I am Fatima Jafri and you are watching my channel Chemistry with Fatima. Today I am here to discuss a new topic with you people, that is atomic and mass number, and we will also discuss about different types of isotopes. So let's start our lecture. First of all, we will talk about what is atomic number and mass number. As far as this topic, atomic and mass number is concerned, you have studied about different types of elements in the periodic table, and you have also studied about their different types of atomic numbers, and you have seen that different elements have the different atomic masses and they have different atomic numbers. So today we have to study what is actually atomic number is and mass number is. So if you have an element, for example, you have like carbon, its symbol, this element symbol is C, right? And you have seen in the periodic table that its atomic number is written on the bottom of the left corner and its atomic mass is written on the top left corner, right? And what is atomic number? You have, let me draw the structure of an atom of carbon. For example, this is the nucleus. Nucleus always contains protons and neutrons. Then there will be one first shell and then there is the second shell. Here you can see there is written 6 and 12. इससे ये हमें पता चलता है कि जो this is the structure for carbon atom, right? This is nucleus. In the nucleus of an atom, there are always protons and neutrons present, right? जो atomic number होता है, उसको कहते हैं हम proton number. Atomic number can also be known as proton number, and proton number is of carbon is 6, right? Up we have to study about this 12 digit. What is it? जो number of protons होते हैं, they are always equals to the number of electrons. जितने number of protons होंगे उतने ही number of electrons होंगे, और electrons are always present in the shells. First shell contains, it resides 2 electrons, and the second shell always contains, let me draw the 1 electron on the shell in the unpaired form. और electrons जो होते हैं वो हमेशा unpaired form के अंदर हम आप पहले fill करते हो. Total अब कितने हो गए? 4 electrons are in the second shell and 2 electrons जो है वो first shell में. Total 6 electrons हो गए. तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर. किसी भी एलिमेंट का द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus of a given element is called as its atomic number. जो number of protons होते हैं उतने ही number of electrons होते हैं shells के अंदर, right? अब बारी आती है न्यूट्रॉन्स की. अब जो न्यूट्रॉन्स हैं, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, उससे हमें डिफाइन होता है mass number of an atom of element, right? यहाँ पर जो atomic mass है वो क्या है? 12 है, right? तो जो 12 एटॉमिक मास है उससे हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं. जब 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, वो अब मुझे कैसे पता चला? अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स के आगे 6 लिख दिया है और ये कैसे पता चला मुझे कि नंबर ऑफ 6 न्यूट्रॉन्स होने चाहिए यहाँ पे. देखिए मैंने आपको अभी बताया कि नंबर atomic number is equals to number of protons, right? Atomic number is equals to
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर जानना है तो आपको उसका पता होना चाहिए कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। और ये आपको इसको रोट लर्निंग इसकी करनी पड़ेगी, आपको ये याद करना पड़ेगा, क्रैमिंग करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो गिवन है, और एटॉमिक नंबर्स किन्हें कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उस एलिमेंट के एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बारी आती है एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास किसे कहते हैं? एक्चुअली एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, मैं यहां पे बल्कि नीचे लिख देती हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी भी एटम ऑफ एन एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, that is equals to its atomic mass. Atomic mass क्या होता है? Atomic mass is equals to number of protons and number of neutrons, right? जब हम प्रोटॉन्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है उसका एटॉमिक मास। अब ये कार्बन का मैंने आपको यहाँ पे सिंबल ड्रॉ किया था और मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो 6 है। एटॉमिक नंबर मींस इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 6 हैं। अब जो एटॉमिक मास है वो क्या है कार्बन का? दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने कार्बन के? 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने? ये भी 6 है। 6 + 6 कितने होते हैं? 12 होते हैं, राइट। तो आपके पास यहाँ पर इसका क्या आ गया? एटॉमिक मास आ गया कार्बन का। मैंने यहाँ पे अभी आपको डेफिनेशन बताई कि एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड्स इज कि यहाँ पर आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बता दिए कि हमने उनको क्रैमिंग करनी है, रोट लर्निंग करनी है, वो पीरियोडिक टेबल के अंदर गिवन है, ठीक है। लेकिन एटॉमिक नंबर्स को लर्न करना इजी है, ठीक है, क्योंकि वो स्मॉल डिजिट्स में होते हैं। जो एटॉमिक मास है, अब आप यहाँ से ही आप अंदाजा लगा लोगे कि जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और इसका जो एटॉमिक मास है वो इसके डबल है, ठीक है। जो बिगर वैल्यूज होती हैं उनको याद करना जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप इसका एटॉमिक मास कैसे याद करेंगे। अब ये देखिए इसके पास यहाँ पे जो है एटॉमिक मास आप जब पढ़ते रहेंगे वैसे भी पढ़ के आपको याद हो ही जाता है। जब आप एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज कर रहे होते हो, लिख रहे होते हो, सुन रहे होते हो डिफरेंट टीचर से, तो फिर आपको वो चीज़ ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। लेकिन अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ पर एटॉमिक मास तो उन्होंने बता दिया कि ये 12 है, ठीक है, और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर भी बता दिया कि यहाँ पे ये 6 है। लेकिन एटॉमिक मास में मैंने आपको एक बात बताई कि जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? एटॉमिक मास आ जाता है, राइट। एटॉमिक मास के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमें पता चल जाएंगे, कैसे? उसके एटॉमिक नंबर से, राइट, जो आपने याद किया हुआ है। लेकिन हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें पता होंगे तो फिर हमें एटॉमिक मास का पता होगा ना। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को पहले जो है वो कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे ताकि हमारे पास एटॉमिक मास आ जाए, क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, राइट। फॉर एग्जांपल आपके पास इफ यू हैव एन एलिमेंट x, ओके, its atomic number is equals to 17, right, and its mass number is equals to 35, right. Now we have to, the question is we have to calculate the number of neutrons. Number of neutrons इसमें कितने होंगे? For example, the element is
एक्स, अब मैं आपको एंड पे बताऊंगी एक्स एलिमेंट क्या था। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है, ये गिवन है वैल्यू आपको। मैथ नंबर जो है वो 35 है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसका मैथ नंबर 35 कैसे आया, इसके अंदर आपको ये जानना है हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर देयर। तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला जाने कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे, दैट इट इज वेरी इजी एंड सिंपल। यू हैव टू माइनस एटॉमिक मास को माइनस कर दें एटॉमिक नंबर के साथ, राइट? तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एटॉमिक मास क्या है, जिसको मैंने ये मास नंबर लिखा है, यहाँ पे एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं, मास नंबर भी लिख सकते हैं। एटॉमिक मास क्या है 35, राइट? इसको माइनस किया किससे, एटॉमिक नंबर से, दैट इज 17। तो ये किसके इक्वल हो गया, आंसर क्या है 18, राइट? तो यहाँ पे आपके पास ये जो एलिमेंट X था, इसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 18 हैं, राइट? और ये एलिमेंट कौन सा है, ये X एलिमेंट जो है ये है दैट इज एक्चुअली क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, मुझे कैसे पता चला, मैंने कैसे जज किया कि ये X एलिमेंट जो है वो क्लोरीन है, वो इस तरह से कि जब कभी आप किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर चेक करते हैं, जो उसके डिजिट होते हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। इसकी वैल्यू क्या है 17। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर एक ही एलिमेंट सिर्फ ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 17, एंड दैट इज क्लोरीन। तो एटॉमिक नंबर को हम यहाँ पे लिख देंगे 17, और जो इसका एटॉमिक मास है, इसका क्या एटॉमिक मास 35.5 एक्चुअली होता है, हम इसको 35 भी लिख सकते हैं, 35.5 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर मैंने एज्यूम किया था, मैंने आपको डिजिट दी थी, x वैल्यू है और इसका एक एलिमेंट है, अननोन एलिमेंट है, आपने इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू माइनस एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, राइट? अब मैंने आपको एक बहुत, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं, राइट? And what is atomic mass? The total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom, right? That is known as atomic mass. मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is known as atomic number, and the number of protons and number of neutrons present in the nucleus of an atom is called mass number, or we can also say atomic mass. अब यहाँ पर मैं आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, वो ये है कि बहुत कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 100% में से आपके पास 1% हमारी नेचर के अंदर ऐसे एटम्स होते हैं जिनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होता है एक ही एलिमेंट के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, राइट? 12 ग्राम आपके पास कार्बन है। अब कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12, और एटॉमिक नंबर क्या है 6 है, राइट? आपके पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन एलिमेंट है। इस 12 ग्राम के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दे आर ऑल अनकाउंटेबल, ठीक है? आप उनको काउंट नहीं कर सकते। ये जो ग्राम जो है दिस इज द यूनिट, राइट? और 12 ग्राम के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दे आर अनकाउंटेबल। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इफ यू हैव 1 किलोग्राम ऑफ शुगर आपके पास 1 kg है, तो इस 1 kg शुगर के अंदर आप कैन यू काउंट द पीसेस ऑफ द शुगर? नो, ठीक है? हम लोग उसके लिए यूनिट यूज करें किलोग्राम, हम लोग 1 किलोग्राम वेट लेते हैं, ठीक है? अब तो डिजिटल मेजरिंग यूनिट्स आ चुके हैं, लेकिन जो पहले वक्त में क्या था कि यहाँ पे आपके पास वेट होता था, जो कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है उस वेट की मेजरमेंट ली जाती थी। अब वो 1 किलोग्राम जो वेट है, आप उसको उसके
क्या कर लेते थे, उसके इक्वलाइज कर लेते थे। ठीक है, अभी भी ऐसे होता है। ठीक है, आपके पास उसके अलावा बहुत सारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आप लोग उसको मैयर कर सकते हो। तो आप इसको किसके इक्वल कर रहे हो, एक 1 किलोग्राम एक स्टैंडर्ड के इक्वल कर रहे हो। ठीक है, आपने अगर 1 kg शुगर लेनी है, 1 किलोग्राम शुगर लेनी है, तो इसको आप एक स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर आपके पास जो वेट्स हैं, जो यूनिट्स हैं, आप उसको उसके साथ इक्वलाइज कर लेते हो। तो फिर आपको पता चल जाता है कि ठीक है, जो आपके पास जो शुगर आई है इसकी क्वांटिटी इन एक्चुअल 1 किलोग्राम ही है, राइट। इसी तरह से क्योंकि ये 1 किलोग्राम के अंदर जो नंबर पीसेस ऑफ शुगर आइटम्स हैं वो अनकाउंटेबल हैं, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, राइट। इसी तरह से ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी ताकि आपको ये क्लियर हो जाए 12 ग्राम ऑफ कार्बन के बारे में। अब जो 12 ग्राम कार्बन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स हैं, क्योंकि यहाँ पे दिस इज मैटर, जितना भी मैटर है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का वो क्या है, एटम है। अब ये कार्बन एलिमेंट के अंदर जो है वो 12 ग्राम अगर आपके पास कार्बन एलिमेंट है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दे आर अनकाउंटेबल। ठीक है, आप उनको काउंट नहीं कर सकते। तो देन मैंने आपको एक इस पे लेक्चर दिया था एवोगैड्रोस नंबर का, कि इसके अंदर जो आपके पास ये किसके इक्वल हो जाएंगे। अब हमने एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था जिसने ये कहा था कि अगर आप उसको काउंट नहीं कर सकते तो उसने अपनी एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी थी। ठीक है, और उसने कहा था कि आपके पास किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है उसके अंदर, ये मैंने यहाँ पर 12 डिजिट लिखा, 12 कार्बन का क्या है, इसका एटॉमिक मास है। तो उसने ये कहा था कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे दैट विल बी equals to 6.022 into 10 raised to power 23 एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। क्यों? क्योंकि हम लोग 12 ग्राम के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हम उनको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए एवोगैड्रो ने एक स्टैंडर्ड वैल्यू बता दी थी, राइट। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू बता दी कि 12 ग्राम के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब इतने एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स के अंदर कोई हो सकता है 1% नंबर ऑफ एटम्स ऐसे होते हैं, यहाँ पर 0.5% नंबर ऑफ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक मास जो है वो डिफर करता है। उनका एटॉमिक मास, अब लाइक फॉर एग्जांपल ये कार्बन एटम है, ठीक है, ये एक और कार्बन एटम है, ठीक है, ये 2 कार्बन एटम्स है, राइट। अब इन दोनों ये हैं तो ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है। कैसे पता चला? जैसे फॉर एग्जांपल ये 12 ग्राम है, इसका मैंने आपको बता दी कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स की इक्वल है। अब इन एटम्स के अंदर चंद एक एटम्स ऐसे हो सकते हैं नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, जैसे 6 है, एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या है, हमेशा 6 रहेगा, ठीक है, लेकिन उनका जो मास नंबर है वो डिफर करता है, वो डिफरेंट होता है। वो क्यों होता है? ड्यू टू देयर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफर कर रहे होते हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ ऐसे एटम्स, दोज हु हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ they have different number of neutrons, they are known as isotopes. ऐसे एटम्स क्या कहलाते हैं? They are known as isotopes of each other. The atoms of an element having the same number of protons but they have the different number of neutrons, they are known as isotopes of each other. Means I can also teach you in the simple words that they have the same atomic number, like protons or neutrons, यहाँ पे भी proton, they have the same atomic number but they have the different mass number. They are known as isotopes of each other. ये एटम जो है और ये एटम जो है वो एक दूसरे के आइसोटॉप्स है। अब ये इनका एटॉमिक मास डिफर क्यों है? अभी मैंने आपको इससे पहले थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताई थी, डेफिनेशन बताई थी कि एटॉमिक मास एक्चुअली किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, ठीक है। अब इनका जो एटॉमिक मास है वो डिफर कर रहा होता है, इसलिए हम लोग इनको कहते हैं कि दे आर आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर। अब ये जो यहाँ पर क्या है, आपको ये मैंने बताया था कि इसका जो कार्बन का एटॉमिक मास है वो क्या है? 12 है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और 6 ही नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स हैं। अब इस एटम के अंदर तो 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, राइट। जो दूसरा एटम है इसका, इसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफर कर सकते हैं, इसके अंदर 7 है, राइट। अब कुछ एटम्स ऐसे होंगे कार्बन के, ये भी कार्बन एटम है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो तो सेम है, लेकिन जो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, हो सकता है इसके अंदर 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ इस कार्बन का? एटॉमिक नंबर तो सेम है 6, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास है वो 12 है, राइट। अब इसका यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है वो इसका सेम है 6 है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास है वो एक डिजिट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज होने से क्या हो गया, इसका एटॉमिक मास 13 हो गया। अब ये जो कार्बन एटम था इसका भी एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इसका जो मास नंबर है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो एक और डिजिट ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 8 + 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं। 6 + 6 क्या है, यहाँ पे 12 है, और 7 + 6 क्या है, 13 है। तो एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक मास। अब सेम एटम है, ये भी कार्बन का है, ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम से, राइट। अब एक कार्बन एटम का एटॉमिक, एक तीनों कार्बन एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम है, क्यों? क्योंकि उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे कैन नेवर एवर चेंज, दे ऑलवेज रिमेन द सेम। लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो हजारों में से, लाखों में से, अरबों एटम्स में से, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स में से कोई ऐसा 1-2 एटम्स ऐसे होते हैं जिनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो डिफर कर रहे होते हैं एक दूसरे से, होते वो भी कार्बन की एटम है, ठीक है, लेकिन उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चूंकि डिफर कर रहे होते हैं, इसलिए उनके जो एटॉमिक मासेस हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। 12, 13 एंड 14 हो गया। तो दीज कार्बन एटम्स आर नोन एज आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर ड्यू टू the difference in their number of neutrons। मैं आपको आइसोटॉप्स पर के टॉपिक पर एक कंप्लीट अलग लेक्चर दूंगी, ठीक है। उसके अंदर हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट आइसोटॉप्स के बारे में करेंगे, जैसे हाइड्रोजन है वो भी रह गया, वो भी मैंने नहीं बताया, इस तरह से, और भी क्लोरीन है, उसके भी डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफरेंट एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटॉप्स मौजूद हैं, और जिनके एलिमेंट, कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटॉप्स अभी प्रेजेंट नहीं हैं, ठीक है। और इन सब बातों को जानने के लिए आपने तो मेरी वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखना, ठीक है, उसको आपने गौर से समझना है, आपने मेरे लिए नहीं, आपने अपने लिए उसको समझना है, और आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करें जो अभी 8th क्लास के अंदर, उनकी अभी 8th क्लास स्टार्ट हुई है, और जो 9th के अभी एग्जाम्स देने वाले हैं, और जो 10th क्लास में हैं स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये सभी के लिए हैं। और ये आपके लिए ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि बार बार रिकॉल होते रहें, तो आपको एग्जाम्स में मार्क्स जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।